Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn English with Saleha. In today's lesson, students, I am going to share with you daffodil summary with proper and clear illustration of each quote and each line. I'll give you an effective description of each stanza of William Wordsworth's poem. But first, subscribe my channel, and if you are new here, and don't forget to like, share and comment it. So let's take the start, students. This is the new syllabus 2025 of class 9 students. So here you can see, so first you will write, if you write the summary with the proper quotes, then it will be more effective, okay? And it gives you more marks in your board exams. So let's take the start. First write the quote with the blue marker. Nature is an art of Allah. First read the first paragraph and then I'll explain to you. William Wordsworth was an eminent, ardent, and a true worshipper of nature. His poem Daffodils recounts a wandering encounter of the speaker with the field of golden daffodils beside a lake. The poem is composed of four stanzas. The poem is composed of four stanzas. The rhyme scheme of each sentence is A, B, A, B, C, C. It means यानी नेचर जो है वो अल्लाह ताला का एक फन है, यानी एक अल्लाह ताला की तख्लीक है. और विलियम वर्ड्सवर्थ वाज एन एमिनेंट. एमिनेंट मीन क्लियर, आर्डेंट, पैशनेट यानी बहुत ज़्यादा पुरजोश, ट्रू वर्शिपर एक सच्चा इबादत करने वाला, नेचर फितरत की, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर का एक सही दिल दादा है और बहुत पैशनेटली वो अपनी इस पोएम को एक्सप्लेन करता है. His poem Daffodils recounts a wandering encounter, यानी ये एक उसकी रूदाद है, यानी वो इसको पेश करता है किस तरह से, with the field of golden daffodils beside a lake. लेक कहते हैं झील को, यानी झील के इर्द गिर्द सुनहरी डैफोडिल्स, आबी नरगिस. डैफोडिल्स मीन आबी नरगिस, नरगिस के फूल. एक पूरे फील्ड में 10,000 फूल लगे हुए हैं और वो उसको किस तरह से वो उसके रिकॉल करता है और अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्लेन करता है इस पोएम में. The poem is composed of four stanzas, यानी ये four stanzas पर बेस करती है. Beside a lake, एक झील के इर्द गिर्द. The poem is composed of four stanzas. The rhyme scheme of each sentence is A, B, A, B, C. यानी ये उसका साउंड है, उसकी रिदम है, उसका किस तरह से वो एक्सप्लेन करता है, जिसका साउंड है A, B, A, B, C, C. So John Keats says, John Keats इसके बारे में क्या कहता है नेचर के बारे में? A thing of beauty is a joy forever. यानी कि किसी चीज़ की खूबसूरती as a joy forever हमेशा के लिए एक खुशी है, forever हमेशा रहने वाली. Okay, next paragraph. The central idea of the poem revolves around the beauty of nature, which has the power to slay a melancholy human spirit. In this poem, the poet describes the beautiful scene of nature. सेंट्रल आइडिया मरकजी ख्याल, यानी इस पोएम का जो मरकजी ख्याल है वो किस चीज़ के गिर्द घूमता है? द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की, फितरत की, कुदरत की खूबसूरती के इर्द गिर्द. विच हैज़ द पावर, जो कि ताकत रखती है, टू सुलेस अ मेलनकोली, यानी कि उसकी उदासी. मेलनकोली कहते हैं उदासी को, उसकी उदासी को सुकून देने के लिए. सुलेस सुकून, मेलनकोली उदासी, ह्यूमन स्पिरिट इंसानी रूह को, इंसानी जज्बे को सुकून देने के लिए वो इस ब्यूटी को रिकॉल करता है और अपनी इनर सेटिस्फेक्शन करता है. ओके, नाउ यू हैव टू राइट डाउन दिस कोट विद द ब्लू मार्कर. लुक डीप इनटू नेचर एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर. इट मीन्स कि जब आप नेचर को, जब आप फितरत को, कुदरत को गहरी नज़र से देखते हो तो आप इसकी हर एक खूबसूरती को समझ जाते हो. He says that one day he was loitering leisurely near the bank of a lake. यानी एक दिन, लेक कहते हैं झील को, बैंक किनारा. Loitering leisurely यानी आवारा घूमते हुए वो एक झील के किनारे के पास से गुजरा. All of sudden, अचानक से, he caught sight of a large number of golden daffodils. उसको बहुत ज़्यादा तादाद में golden daffodils नजर आए. The flowers were growing beside the lake, और वो झील के इर्द गिर्द लगी हुई थी. अंडर ट्रीज, दरख्तों के नीचे. एंड दे वर मूविंग देयर हेड्स एंड डांसिंग विद द जेंटलनेस ऑफ द ब्लास्ट विद चीयरफुली. अब वो क्या था, उसने यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज की है, यानी वो किस तरह से ह्यूमंस की तरह अपने सर को हिला रही थी, डांस कर रही थी, और उनकी जो शराफत थी वो हवा के साथ इस तरह से झूमते हुए बड़ी खुशी के साथ सारे डैफोडिल्स फ्लावर झूम रहे थे. Now again you will write here another quote.
वन टच ऑफ नेचर मेकeth द होल वर्ल्ड कीन, यानी अगर आप नेचर को ज़रा सा भी एक टच भी करते हो तो आप उसकी खूबसूरती को पूरी तरह से समझ जाते हो। मेकeth इज ओल्ड इंग्लिश, इट मीन्स मेक्स, यानी पूरी दुनिया को वो आपकी मुट्ठी में समा जाता है। सो दे अपीयर्ड एंड वर शाइनिंग लाइक स्टार्स, वो बिल्कुल इस तरह से थी जिस तरह से सितारे चमक रहे हैं, एज द मिल्की वे कहकशां में। दे वर इन अबंडेंस इन नंबर्स, वो तादाद में बहुत ज्यादा थी, अबंडेंस कसरत के साथ। He counted see 10,000 flowers at a glance. At a glance mean एक झलक में, यानी वो एक झलक में 10,000 फूलों को देख सकता था। They were very attractive and charming. वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश थे। He kept on looking at them for a long time. वो काफ़ी देर तक उनकी तरफ देखता रहा। And they made a lasting impression upon the poet's mind. और उसने lasting impression, हमेशा रहने वाला तासुर शायर के ज़हन में कायम कर दिया। Okay, again we have another quote, students. The poet is, here you will write that there is no heaven. You will cut the poet, this is not correct. There is no heaven on earth, but there are pieces of it. यानी अब इसका क्या मतलब है कि ज़मीन पर जन्नत तो नहीं है, लेकिन उसके टुकड़े हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। किस तरह टुकड़े नज़र आते हैं? यानी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों की खूबसूरती में हमें वो टुकड़े नज़र आते हैं। Okay, you will write the statement with the blue marker or the black pointer. So next paragraph is here. In the poet flashes upon the canvas of his mind. Canvas of his mind यानी उसके ज़हन पर वो नक्श हो चुकी हैं जो कि वो इजहार करना चाहता है अपनी खूबसूरती को, अपनी एक मेमोरी को। When he is alone in his room, alone तन्हा अकेला, जब अपने रूम में अपने कमरे में अकेला होता है, the beautiful sight of those golden daffodils, तो वही उसका साइट में नज़ारा, वही सीन उसकी आंखों में चलता है उन सुनहरी डैफोडिल्स का। His heart is filled with pleasure and begins to dance, तो क्या होता है जब वो उनको रिकॉल करता है तो उसका दिल खुशी से भर जाता है। प्लेजर खुशी, begin to dance नाचना शुरू कर देता है। In the company, उस कंपनी में, डैफोडिल्स की कंपनी में उसका दिल झूमने लगता है। Begin to dance in the company of daffodils. The poet in these reflections with the excitement help of his contemplation as he tells us. Contemplation mean गौर फिक्र, और इस गौर फिक्र में वो इसको किस तरह से और ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करता है। Again students, you will write this statement with the blue or the black pointer. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Okay, again you will write in the center of the page. So next paragraph is here. The poem is a tribute to a nature. Tribute mean खराजे तहसीन, यानी जो पोएम है ये नज़म है एक फितरत को, एक कुदरत को खराजे तहसीन है। एंड इट्स मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मीन मजहर, यानी इसका इजहार शायर किस तरह से कर रहा है। टू ऑल इट्स ग्लोरी, इसके इज्जत और वक़ार के साथ। इट मीन्स वेन एवर वी आर सैड, कि जब कभी भी हम उदास होते हैं, वी शुड रिकॉल द ब्यूटिफुल मेमोरीज टू ब्रिंग अस हैप्पीनेस एंड जॉय, तो हम अपनी उन खूबसूरत यादों को याद करते हैं जो कि हमने खुशी से और इंजॉय करते हुए गुजारी। Okay students, now we have the clear description of this new syllabus daffodil summary. I hope you like this video with thorough and other description of nature. Please press the bell icon, then you can be informed with my coming and next video. So we have completed this summary. I hope आप सबको समझ आई होगी. So take care my dear students. Allah Hafiz.